What was success for you when you started? When you stepped out of college, what was success for you then? जेब में सिर्फ 500 रुपए थे and I was sitting in one of the very posh and I was hungry and my daughter also was hungry. But एक sandwich ही 485 rupees का था जिसमें 2 slice आते हैं. So when I got an opportunity, so I used to go to this bookstore called Titleways in Bandra West, and I was writing my और मेरे कर्म मेरे बच्चे का. मैं हर बार कहती हूँ मैं जो कर रही हूँ ना, मेरे बच्चों ने कल को मेरे कर्म उनको लगने हैं. कल मेरे बच्चों के साथ अच्छा हो भगवान, इसलिए मैं अच्छा कर रही हूँ. आई ऑलवेज टेल, आई सेड, यू नो, व्हेन यू एन एंटरप्रेन्योर इज अ मदर, एनी मिडिल क्लास मदर विद अ स्मॉल किड्स, उसकी भावना खाने में अलग होगी. Hey guys, welcome back. On today's episode, I have an endurance runner, a successful entrepreneur, and a Forbes listed author of Miles to Run Before I Sleep, Sumedha Mahajan. Welcome on my show, Elevate. And thank you for the invitation. How are you? I'm super excited. All right. Yeah. Okay. So, first of all, I think from the time I've known you, you're a fitness freak. Yeah. How did fitness become your personality? सो फिटनेस तो एक पहली बात, बिकॉज हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे लुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो फिटनेस वॉज ऑल्सो वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी टू लुक गुड एज वेल. बट हाउ एवर लाइफ, आई वॉज बोर्न एस्थमेटिक. मुझे बचपन से दमा था तो सांस लेने की बहुत प्रॉब्लम थी. और born and brought up in city like Amritsar, where air is still fresh and people are much healthier in sense of breathing. शारीरिक तौर से तो पता नहीं, लेकिन the air was very clean. So breathing was a big problem and always being hospitalized for nebulization and all. My father introduced me into tennis, lawn tennis player, ताकि मेरी सांस की जो बीमारी है वो थोड़ी हील हो सके, because making my lungs strong. And from that I picked up fitness. Was not with choice. मुझे ज़्यादा actually आप believe नहीं करेंगे, मैं was a very slow learner. मैंने 11 साल की उम्र में साइकिलिंग चलाना सीखा, जबकि मेरे भाई बहन पहले ही सीख चुके थे. So I took time to learn how to ride a bicycle, and I was a slow learner. I was not very fit. I was, because of being asthmatic and being on too many medications, I was also very prone to any kind of small diseases or breakout. So hence, yet I was always being pushed with my family, and that's how I entered the fitness fight. However, as I started growing up, I realized that more I exercised, more I was able to reduce my hospital visits and reduce my steroids intake. Because anyone who has asthma or has a bronchitis, I'm sure can relate to it, that we are so much into medications, especially steroids are given when there are acute attacks. So I was able to reduce the number of episodes by keeping my lifestyle healthy. So fitness was not that I chose, it was imposed on me, because भगवान ने सारा दमाल दे दिया था साथ में, नाक पे दम का और सांस में दम दिया हुआ था. That's how I entered the world of fitness. But I have to tell you, you're not just so Sumedha is a mother of two, and you're not just an inspiration to all mothers over here, but you're an inspiration to even people like us जो basically थोड़ी बहुत beer belly लेके चलते. I want to talk to you about your early life. What was success for you when you started? When you stepped out of college, what was success for you then? I left my home when I was 19 years old. I remember I always wanted to become a lawn tennis or an athlete player, because when I grew up in a sports family, my father was our tennis coach, and my sister, brother, we all were playing nationals. We were doing a lot of youth festival in Punjab, youth festival, and if anyone is being in Amritsar and Punjab, the sports plays a very big part, especially curricular activities. I always wanted to be an athlete, but I knew I can never be chosen one, because I'm not gifted like other
kids and they're prodigies in sports. To become big in this country, you have to be one of the prodigies. Like, even if you have to be now greatest runner, the PT Usha, these are prodigies. They came with nothing, and I was very sure, even if I was a prodigy, I'm going to be such a, I will always need an extra attention, so I was not there. So when I left the house with a grudge that I could not be what I wanted to be. So I realized that if I can beat my destiny, it will be by making money. So I left back because I saw how the world respect people with the good jobs, and I come from a service class family. My father is retired principal and ex-historian. My mom's a radiologist, doctor, and my entire family, even if my uncles and aunts, they all are in the service industry. They're mostly in the educational field or in a government sector. And I saw the value of education, the money. They would always discuss, us job mein itni pagar milti hai, us sector mein. So I thought probably that's the ticket of success. So when I left the house at the age of 19, I just wanted to make money. And I wanted to show people that, look, I have beaten something which was not given to me, my destiny. If sports is not me, then I'll earn. So that's why I left the home, to make money. That's a separate issue. I don't know, but over the period of time, as I entered the corporate world, somewhere down the line, I realized I was not meant. I don't understand the world, the psychology of money. So, and I was too much driven by heart. I think that's a one weakness we as Indians have. I will not say it is with the women. It's most of the Indian, we सब middle class have. हमारे को घरों में दिल से सोचना सिखाया जाता है. दिमाग कम चलाते हैं, हम दिल से ज़्यादा सोचते हैं, और इसलिए शायद इस हर एक घर में एक सक्सेस और एक इमोशनल स्टोरी है जो दिल को छू जाती है और आंखें भर आती हैं. Nice. You started your career in the corporate world. Yes, I started with the corporate. Tell us a little bit about that. So I started my career, I was just 22 by the way. At 19 I left and I got my job by 20 and a half, 22. 2 years of MBA, and then 22 I was working in a banking industry. And just like it's one of the, I remember everyone was pumping in my house, भाई चीनू की तो भाई अंग्रेजी बैंक में नौकरी लग गई. It was like suddenly the feather on a hat and everyone was flaunting in the house कि भाई पूरे सर्कल में अरे चीनू तो इतनी, my nickname was Chinu, and सुमेधा की तो यहाँ जॉब लगी, and everybody was pompous, and I literally trump card of my life, and I started disrespecting every single one who was not as far as an MNC company was concerned. So, but then I learned that MNC, first 6 months are, confirmation period. You're still the thing, you are still there, make sure that you don't know the realities of the world. But however, as I progressed my time in the banking industry, I realized it's a very, very ruthless world. यहाँ पे ethics चलता ही नहीं है सर. यहाँ पे टारगेट्स अचीव हुआ कि नहीं, कैसे किया, ये ज़्यादा ज़रूरी है. और ये लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि आप हाउ यू प्लीज योर बॉस. द ग्रोथ इट नेवर डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू ब्रिंग ऑन द टेबल. आप टारगेट्स अच्छा लाते हैं, आप बॉस को अच्छा प्लीज करते हैं, देन यू आर ग्रोइंग इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. बट मैं आई वॉज एबल टू ब्रिंग गुड नंबर्स ऑफ कोर्स, बट I was not able to balance my my boss is quite happy. So probably that's, but however, I had my hell lot of learning. I worked hard. I worked and I learned few things down the way, that you are nobody as long as you're working, and nobody if you do not carry your company's visiting card. The day you don't have it, the doors that open for you, all those clients you are so pompous about, are there for you because you're carrying that company's brand's visiting card. And which was a very shocking thing for me, because identity crisis आ जाता है सर. एक थोड़े सालों, जैसे हम थोड़ा थोड़ा कहीं किसी जगह पे काम करते हैं, जैसे आपने मुझे भी ऑथर बोला, वो मेरी पहचान बन जाती है. पर कभी कभी जब हम बाहर जाके किसी से बात करते हैं और आपको कहा जाता है कहाँ के ऑथर हो, हम तो जानते नहीं, तो सडनली आपको आइडेंटिटी क्राइसिस आता है. एंड दैट्स व्हेन आई लर्न फ्रॉम द कॉर्पोरेट वर्ल्ड कि you are nothing but just a visiting card, as long as you are surfacing what they want.
और फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड आपको ना एक बहुत तरफ से एक रूथलेस इंसान, बड़ा ही 24 घंटे आप यही डिस्कस कर रहे हो, तेरी सैलरी कितनी है, कहाँ पे कर लिया है, डिस्कशन इज ऑलवेज अबाउट मेंटेन एंड मॉनिटरी। कोई ये नहीं पता, सब जैसे द मोमेंट यू वर सिटिंग विद योर फ्रेंड सर्कल या एक्स कॉलेज कॉलीग्स और योर एनीबॉडी, आप सब बैठ के अपना पॉम्पो सिखाते हो, देखो मैंने गाड़ी ले ली, मैंने घर ले लिया, सभी अपनी मोनेटरी सक्सेस शो करते। एंड नाउ इट इज अनदर थिंग, यू सडनली स्टार्ट शोइंग इट, लुक आई लिव बियॉन्ड दिस। पहले वो था, अब आ गया लुक आई डू रनिंग, आई ट्रैवल एंड ऑल टू शो दैट लुक आई एम बैलेंसिंग माई लाइफ, बट इन रियल वी आर नॉट। तो मैंने आई स्पिक्ड अप रनिंग इन द ईयर 2011 आफ्टर गेटिंग मैरिड। मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही थी सर, तब मैंने रनिंग लिया था, मेरी शादी हुई थी, आई वॉज वेरी अनवेल, हमारी शादी आई गॉट मैरिड इन 2009 अक्टूबर, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम आई वॉज इन दिल्ली। तो दिल्ली में ना मुझे इट्स लाइक अ हेल फॉर दोज हु हैव एस्थमेटिक। अभी आप सोचो 2009 में मेरे साथ, आज तो बहुत ऑलमोस्ट एवरीवन इज सफरिंग वहाँ पे ड्यूरिंग द बैड ईयर, बट एट दैट टाइम आई यूज्ड टू बी वहाँ पे, आई यूज्ड टू लिव इन GK1 एंड दे यूज्ड टू बी वन हॉस्पिटल में, वहाँ पे रेगुलर जाती थी नेबुलाइज करने आफ्टर जस्ट गॉट मैरिड, एंड एवरी सेकेंड डे आई वाज देयर एंड आई स्टार्टेड रनिंग बिकॉज आई वाज एस्केपिंग, वांटेड टू बिकम हेल्दी अगेन। बट रियलिटी में मैं अपनी जॉब लाइफ से एस्केप करी थी, द काइंड ऑफ टॉर्चर्स एंड काइंड ऑफ प्रेशर जो हम जॉब में कर रहे हैं। आधे ज़्यादा लोग ट्रैवल इसलिए नहीं करेंगे, उनको अपने आप दे आर सर्चिंग, दे आर फेड अप, दे आर फिगरिंग आउट दैट व्हाट इज माई वैल्यू बियॉन्ड माई 9 to 6 जॉब, बट दैट 9 to 6 जॉब इज अ नेसेसिटी, वो घर चलाती है। सो कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने मुझे ये सिखाया कि तुम तब तक नेसेसिटी हो जब तक तुम हमारे हो, लेकिन अपनी पहचान तुम्हारी तब तक ही है सोसाइटी में जब तक तुम मेरे पास रहते हो। तो वो एक तरफ से रूथलेस लाइफ एंड आइडेंटिटी क्राइसिस की एक दौर थी मेरे लिए। माई हस्बैंड स्टिल वर्क्स, श्योर आई कैंट कंप्लेन मच, वो अभी भी जॉब करते हैं, वो बैंक में ही हैं। So I'm very grateful for his job and I hope he rises in his career. But हाँ, कहीं ना कहीं मैं अलग थी और मैं अपने आप को वहाँ पे और देख नहीं पा रही थी। It was not the place where I wanted to be for long. Sumedha, how long was your journey in the corporate world? So I worked for 7.5 years. Okay. And after that, as I said, I actually, during that 7.5 years, in 2011 and 12, actually, I did my, one of the very milestones run in my life. I ran from New Delhi to Mumbai, 1,500 kilometers to save the environment. I was the only girl along with 5 other men. And that was organized by NDTV for a Greenathon, Save the Environment message. And that run changed me completely as a human being, because unlike other men, they were running to, because they were. But when I ran as a lone woman, I became more than a cause of just an environment. A lot of people started reaching me out as a woman, reaching out that how I'm inspiring them, and the stories which I met, the NGOs we were meeting because of Greenathon were majorly were supposed to be the environmental friendly. They are doing things, these villages and these a lot of NGOs doing so many things to save the environment and educate the people about how to be kind towards the nature and how we can recycle. But whenever they used to see me, and they will, group of women will come forward and they'll start talking about their problems and their stories कि हमारी लाइफ में ऐसे ऐसे होता है, आप शादीशुदा हैं, आपके साथ भी ऐसा, आपके हस्बैंड आपको ये इतनी छोटी सी शॉर्ट्स में भागने देते हैं सड़कों पे, इतने लड़कों के साथ भाग रहे हो, आपको कुछ हुआ तो नहीं अभी तक। देन आई रियलाइज कि द वर्ल्ड मैं जिस कंट्री में भाग रही हूँ, आदमी कहीं पे भी खड़े होके अपने आप को रिलीव कर सकता है। एक औरत को हर वक्त अपनी मैं हमेशा कहती हूँ द्रौपदी की तरह अपने आप से सफाइयाँ देनी पड़ती हैं और अपने आप को 10 बार देखना पड़ता है, जबकि अगर उसका कॉल ऑफ नेचर आता है तो शी हैज़ टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट हाउ शी इज़ प्रेजेंटिंग हर सेल्फ टू द वर्ल्ड। आई रिमेंबर my breast was bleeding when I was running, so all my t-shirts used to have a blood spot stains. So they'll always ask me to change the clothes, and while running they won't take my pictures because they would not show the right side. And that's when I was
realize the inhuman side of the corporate world, that they are nice, they want to do the good to the world, to tell the world कि देखो हम पर्यावरण, but in the real they're not the human side is not there for their own people. हम अपने ही लोगों के साथ ह्यूमंस के, हम पर्यावरण के लिए पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, पर वो क्या जो सांस ले रहा है, जो ह्यूमंस आपके साथ सांस ले रहे हैं, इंसानियत कहाँ है? So when I joined after the run, when I came back, I remember on 12th, on 20th April I started the run. 20th May was 2012. It was Sunday, the run inculcate. 21 तारीख को मुझे मेरे बॉस ने कहा कि तुम रिपोर्ट करो, क्योंकि तुम 1 महीने की छुट्टी पे हो, नॉन पेड सैलरी, इतनी लीव नहीं मिलती, सबैटिकल नहीं लिया था मैंने। मैं रिपोर्ट कर रही थी, मैं इतनी बड़ी रन के लिए आई थी, मुझे ऑफिस में किसी ने कुछ नहीं कहा वाओ अचीवमेंट्स क्या थी, सब ने ये पूछा टारगेट्स अचीव नहीं हुए हैं, रेडी हो जाओ। दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड आई वोंट बी अ पार्ट ऑफ, बिकॉज I was changing too much, my values were changing too much. I said there's so much more than just फंड्स लेके आओ, ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, ये स्टॉक का ये बढ़ाओ, ये, एंड दीज आर ऑल मैनिपुलेटेड बाय फ्यू पीपल, मैन, पावरफुल मैन हु आर रनिंग दिस इकोनॉमी, वही बताना चाहते हैं ये सही है ये। So when I was running also during that time, I came across so many big companies which were my so-called dream play. मैं मुझे कहती बैंकिंग सेक्टर से निकल के मैं फार्मा में जाऊंगी, but I came across a city called Ankleshwar. It's called it's a pharmaceutical hub of all the big corporates in India, whether it's Johnson or the XYZ brands, would not name them. They were there. जब मैंने उस सिटी की असलियत देखी कि ये क्या ये केमिकल इंडस्ट्रीज करती है, फार्मा इंडस्ट्रीज का डार्क साइड देखा, I said shit, I'm not meant for it. I can't be. सर कहीं ना कहीं वो शायद मुझे लग रहा था जब कोई बच्चा को Ankleshwar has a lot of people with heart diseases and has almost every second one is suffering from skin problems as well as breath. हम दिल्ली की बात करते हैं, Ankleshwar में पिछले बहुत सालों से ये चीज़ें चल रही थी। वो जब मेरे को दिखी सामने, जब हम वहाँ के संस्थाओं से मिले, and when I met people there, it just broke me so much. I said, Sumedha, ये पैसा नहीं हजम होने वाला यहाँ के लिए, you're not meant for. I realized then that I'm not meant. I'm too good. I'm a very good human being, and I'm meant for very big things in life. And I'm not meant, and probably I'm gonna be much bigger, but in a good way. And that's when I decided that I'm gonna quit the corporate world, because I didn't, and I always asked my God कि थोड़े साल और पैसे कमाने देता, क्या प्रॉब्लम थी? कम से कम 10 साल तो हो जाते, थोड़ी सेविंग हो, 7.5 में यार, जैसे ही 7.5 की शनि की दशा खत्म हुई, corporate went out of my life. Yeah, so I was there for till 7.5 years. However, I think had God not shown me, I would have stayed for a couple of more years and did some savings. Yeah, but I don't regret. Jokes apart, I'm very proud that I stayed at least till then. Your job took you all over the world. Yes, and you've witnessed a really high level of success. Sumedha, what does it take for someone to leave such a high-paying, high-value job? It must have taken a lot of courage for you. So, walk us through a little bit about that. So I was, the shocking with me happened was in 2012, I was given a very good promotion, and I was handling a fund. I was in a fund business. I was handling a good funds. So our commissions and everything was very nice. But then, as I said, I ran and I came back. I joined. It was not that I could immediately. I was there in May, 21st May I came back. I was working. Down the line, I was getting a lot of limelight. That time I was the only female at that time who ran such a big distance. I was covered by all the big, from Huffington Post to your, that time, Femina. Everybody covered my story, Times of, and everybody, I was giving too much limelight. Somewhere down the line, it was, I saw the opportunity as well. I had a book to write. I wanted to write the story about my journey, because I realized if the
the way the media is going to present is going to talk about only the stars who ran with us or been the other big people around me, and I am not going to be visible. And as I said, बचपन से ही visibility का शौक था. That comes with being a true Punjabi. That's come from true, exactly, typical Punjabi. So I had to become, हम लेते नहीं हैं किसी का ऐसे कि हमारे को आप, we cannot be stepped upon. That's one thing was very clear. और कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि मेरे में I am much more, I deserve, I can do more things in my life than just being in a job and earn money. Because I was evaluating myself in a different way. मुझे उस समय था कि अगर मेरा एथलीट बनने का ड्रीम है तो why not go and chase for once. Now God has given me, now I am having a Limca world record in my pocket. Why not go and have 2-3 more records and then get back to the job. And I learned one thing, that if you in corporate world, if you have achieved some level or grade, you can always come back. But in your personal and physical life, and I was 28, 29 that time, और मुझे बच्चे भी करने थे. I was very practical about that कि हाँ मुझे उस समय नहीं चाहिए थे, but ऐसा कभी नहीं था कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए. I always wanted to be a mother. After few years, definitely in the car, not then. तो मुझे था कि एक बार तो अपनी ज़िंदगी का थीम चेंज करना. हाँ, बट यू नो, एज आई कम मैरिड ऑल्सो टू अ मिडिल क्लास फैमिली, देयर ऑल्सो आई डिडंट टेक अ गुड डिसीजन, बट आई एम सो हैप्पी आई मैरिड हिम. बिकॉज मिडिल क्लास के लोगों को एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है सर, मुझे अपने मिडिल क्लास वर्किंग सर्विस क्लास फैमिलीज़ में हम विंग्स देते हैं. वी गिव विंग्स टू आवर ड्रीमर्स, इवन आवर फैमिली किड्स. हम ये जितने भी आप लाइफ में देखोगे, जिन बच्चों ने अपनी ज़िंदगी में कुछ माइलस्टोन्स अचीव किए हैं या ज़िंदगी में कुछ हटके किया है, ये सब के पेरेंट्स जो होते हैं ना, ये मिडिल क्लास के हैं. वो हमेशा कहता है तू जा जी अपनी ज़िंदगी, बिकॉज उन्होंने खुद को पता है कि कहीं ना कहीं उनके थ्रू दे माइट गेट अ चांस टू लिव देयर ड्रीम्स. एंड एवरी टाइम आई रिमेंबर, sometimes I wanted to go back to my corporate life. My husband will say one thing to me when I was struggling, when my first company, Kata Business Consulting, which I started after quitting my job, consulting, the payments and consulting, then I came to like, dude, it is not as simple. It comes in tranches, and for the last tranche, you're always begging and begging and begging, and then it takes too much long, and it doesn't run the business. I remember I told my husband, I'm gonna go back to job. I think that's how we're gonna be able to survive, as we are living on rents. We do not have a family financial support. And then he said to me one thing I cannot forget, and that gave a birth to Break Free, was that I want to break the cycle of the hand to mouth. Sumedha, we have to break the cycle. मैं नहीं चाहता कि हम सिर्फ जब बैठे यही डिस्कस करें, आप अपनी सैलरीज का क्रेडिट कार्ड पे हम घूमने जा रहे हैं. हम कुछ क्रिएट करना चाहते हैं जो हमें कभी नहीं मिल सकता. हम जॉब में हैं, हम सारी ज़िंदगी ट्रैवल कर सकते हैं, हम कहीं पे भी जा सकते, हम वी कैन एन्जॉय द लग्जरीज ऑफ लाइफ, बट वी विल नेवर एवर आफ्टर सर्टन एज विल बी एबल टू से हमने कुछ क्रिएट किया है. अब मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, एंड आई नो आई कैन नॉट, बिकॉज someone in the house needs to earn, and let me do the earning and you go and create. And every time I wanted to go back to job, he made sure I don't come back. He says, we will take, and you won't believe me, he actually wanted me to become an entrepreneur. मैं नौकरी छोड़ रही थी, मैंने उसे तब भी कहा था, अरविंद घर कैसे चलेगा. हम क्रेडिट कार्ड्स पे हमने सर 36% पे पर्सनल लोन लेके बिजनेस चालू किए हैं, क्योंकि हमारे पास एसेट्स नहीं है और हमारे पेरेंट्स के बच्चे हैं, तो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं नहीं, कुछ देने वाला ही नहीं है, कोई देने वाले नहीं है. सो हमें मार्केट से हमने 36% लोन लेके, पर्सनल लोन लेके हमने बिजनेस और सपने चालू किए हैं. और I've witnessed it. मैंने तो विटनेस खुद अपनी आंखों से किया है, and I've seen it with the passion that you do. Yeah. Everything. And you just said a very beautiful thing about, which is also very close to my purpose, which is, and now I understood what Break Free actually means. Yeah. You know, and it's something that is very close to my heart, and I believe that every person
in this world must achieve financial freedom, because it's only after we are free from financial worries can we make or live the best of our life, not Yes. just in a material and external world, but maybe we can do things for other people, but that can only happen once our cup is full. Absolutely. So that's one of the things that is very close to my purpose, is to basically help people be financially free, and it's something that I've learned, and I'm really inspired from your thought, because I know on the basis and the values under which you run your cafe. Thank you. Yeah. Tell us how that came to fruition. So Break Free Cafe is a part of a Break Free group. So Break Free group came into existence in 2017-18. We started a Break Free company. Actually, sir, I'll have to again take you back to the flashback. I'm willing to get. Okay. So 2013 मार्च में मैंने अपना कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ दिया था. 1 अप्रैल से मैं आई वॉज नाउ डिसाइडेड टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर. तो उस समय मैंने कार्ता बिजनेस कंसल्टिंग करके नाम करके मैंने स्ट्रैटेजी टीम स्टार्ट की थी, वेयर वी वर कंसल्टिंग कंपनी स्मॉल SMEs with their supply chain management, CRM, there is a customer vendor management, majorly supply chain और new market developments में कि कहाँ पे वो क्या सामान बेच सकते हैं. और एक प्रोडक्ट का प्रोडक्ट मार्केट रिसर्च में थे हम लोग. बेसिकली वो कर रहे थे सप्लाई चेन, वेंडर मैनेजमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट. मेजरली ये टर्न अराउंड टाइम की यहाँ पे उस टाइम पे ऑनलाइन बिजनेस वॉज नॉट वेरी बिग. So majorly people were still logistically was very very different. तो हम लोग बेसिकली उसमें थे और प्रोडक्ट डेवलपमेंट मार्केट्स ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हम ये स्मॉल बिजनेसमैन इन इंडिया के लिए मैं कर रही थी. एंड आई डिड कपल ऑफ गुड प्रोजेक्ट्स. 6-7 मैंने प्रोजेक्ट्स किए थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि पेमेंट्स वर नॉट कमिंग ऑन टाइम. कोई भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए उसमें एम्प्लॉयज़ डालने पड़ते हैं. हम भी काम करते हैं साथ में. वी हैव टू हैव 2-3 अदर पीपल स्टाफ हु इज़ कॉन्टिन्यूसली एट द क्लाइंट साइड हु इज़ वर्किंग एंड इम्प्लीमेंटेशन. क्योंकि ये कंसल्टिंग में क्या होता है ना, प्रोजेक्ट सर्विस इंडस्ट्री में था, क्वान्टिफाइड नहीं होता. तो बड़ी बार देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट कि यार ये तो मेरा ही आइडिया था, कि नहीं भाई अगर तुम्हारा आइडिया तो तुम्हें 6-7 पहले नहीं लगाया. लेकिन बट हम उस समय ना ही हम कोई इतनी बड़ी कंसल्टिंग फर्म थे, मैं थी कि मैं अपने आप को जस्टिफाई. सो मैंने रियलाइज़ किया कि एवरी प्रोजेक्ट यू गेट इम्प्लीमेंटेड 6 महीने का 1 साल के बाद, उसका गेस्टेशन पीरियड का पहला ट्रांच तो उसी वक्त आ जाता है, दूसरा भी थोड़े बीच में आ जाता है. लास्ट ट्रांच वॉज ऑलमोस्ट लाइक बेगिंग कि भाई पैसा दो सर, हमारा पेमेंट पेंडिंग है, नहीं देंगे. इतना पे करते करते रोज़ ऑफिस जाना शुरू करके पैसा मांगने जाना. समवन इज़ ऑलवेज, आई वाज ऑलवेज फॉलोइंग अप विद द एक्स पेमेंट. पर उसके बाद ये दूसरा प्रोजेक्ट में भी तो बहुत ज़्यादा डेट में अपनी जेब से खर्चा करना पड़ता. माई सेविंग्स ऑलमोस्ट वर were getting exhausted in that, and I was not seeing the kind of volumes I wanted to grow, because joy नहीं मिल रहा था. किसी को आप बना के देते हो, फिर वो कहता नहीं नहीं ये तो मैंने ही किया था. वो जस्टिफिकेशन की गेम में मैं रेडी नहीं थी. एंड देन मैंने डिसाइड किया कि इफ़ आई एवर, एज आई सेड, आई वांटेड टू गो बैक टू जॉब. माय हस्बैंड डिड नॉट अलाउ. ही सेज इतने ऐसे कैसे हार मान सकते हो, 2 या 3 साल हुए हैं, तुम प्लीज़ कुछ करो. आई वांट यू टू बिकम क्रिएट अ ब्रांड. एंड देन आई सेड कि ठीक है, मेरे दिमाग में ये आइडिया है, देयर इज़ अ बिग गैप. तो मैंने उन्हें कहा कि अरविंद हमारी कंट्री में आई वाज सर. इसके दौरान जब मैं एंटरप्रेन्योर बनी, मैंने मोटिवेशनल स्पीकिंग और लेक्चर्स देने शुरू कर दिए थे, बिकॉज 2015 में जब मेरी किताब आई थी उसको काफ़ी लोगों ने अच्छी तरह से वेलकम किया था. मेरे पास सर बुक लॉन्च के पैसे भी नहीं थे, मैंने बुक लॉन्च नहीं किया, बस पैसा ही नहीं था. जबकि जब बुक ने मेरे को जो पैसे मिले थे, मुझे साइनिंग अमाउंट जो मेरे पब्लिशर रूपा पब्लिकेशन से दिए थे, उस साइनिंग अमाउंट को भी मैंने, मुझे याद है, मेरी स्टाफ की फीस में दे दिए थे. तो मुझे अब मेरे पब्लिशर का फ़ोन आया कि मैं आपके पास तो साइनिंग अमाउंट पड़ी है, उससे बुक लॉन्च कर लो. मैं कहा सर वो तो चले गई वो चेक आते ही चला गया. तो फिर बुक लॉन्च भी नहीं हुआ था. एंड पर वो बुक, भगवान कहते हैं ना, ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए क्या क्या रखा है कभी तुम्हें मालूम ही, तुम्हें ज़रूरी नहीं कमाना हो, ऊपर वाला खुद ही बड़े रास्ते खोल देता है. वो किताब अपने आप ही ओवरनाइट हिट हो गई थी.
एंड बुक गेव मी लॉट ऑफ अटेंशन फ्रॉम द मीडिया. अपने आप ही मुझे बहुत सारा कॉलेजेस कॉर्पोरेट्स ने इनवाइट करना शुरू कर दिया था. एंड मैंने छोटी छोटी फीस लेके अपना मोटिवेशनल स्टार्ट कर दिया था टू रन द बेसिक्स एंड माई पॉकेट मनी. मैंने हमेशा कहा था ये मेरी पॉकेट मनी है, इससे मैं अपने खर्चे निकालूंगी. मेरा जो भी, आई विल नॉट आस्क मनी फ्रॉम अरविंद. माई हस्बैंड नेम इज़ अरविंद. तो मैंने कहा फिर भी मुझे पता था बाकी खर्चे तो वो उठा ही रहा है तो थे. लेकिन कंसल्टिंग के टाइम पे आई वॉज लूजिंग माई सेल्फ. मैंने रियलाइज़ किया कि पेमेंट्स नहीं आता, डेट बढ़ता जा रहा है. एंड लेक्चर्स ये 2 से 3 थे. उसके दौरान पे आई यूज्ड टू मीट लॉट ऑफ दीज कॉलेजेस एंड स्कूल्स अक्रॉस इंडिया. तो वहाँ पे जब लोगों से मिलने के बाद ना वो हर बार कहते थे कि हमें भी रनिंग करनी है पर हमारे कपड़े ठीक नहीं होते हैं. लेडीज़ आके लिखती थी कि मैं भी नाइकी का आपके जैसा गियर पहनना चाहती हूँ, लेकिन नाइकी की जो स्पोर्ट्स ब्रा है वो एकदम टाइट होती है, मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल S साइज़ या M. मैं हस्बैंड की टी शर्ट पहन के रन करती हूँ क्योंकि मेरा नीचे के मेरा साइज मिलता नहीं है. एंड विमेन आर वेरी कॉन्शियस, 90% सर 2017-18 की अगर हम बात करेंगे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डेटा व्हाट वी हैव टुडे. Exactly 10 years back, the sports industry in India was very different. Nike, Adidas and Puma, these were the 3 players we had. And that time they were selling majorly, women were buying men t-shirts. They were wearing men gear while working out. कितनी आयरनी की बात है ना. जिस देश में हम एथलीट्स तैयार करना चाहते हैं उस देश में पहले तो कपड़ा ही नहीं है और इतना और दे वर अदर इंडियन ब्रांड्स, दे वर लॉट ऑफ इंडियन लोकल ब्रांड्स दे वर बाइंग, बट देयर मार्केट वाज tier 2 tier 3 cities. And majorly again, but the kind of technology that the money that goes in a good quality fabric was limited to into 4 brands उस टाइम पे. एंड देन व्हेन आई रिमेंबर 2016-17 मैंने हस्बैंड को कहा कि मैं जाना चाहूँ. कहता लास्ट पता हूँ तुम करना है. मैंने कहा अगर तुम मुझे चाहते हो, आई वांट टू बी इन अ टेंजिबल इंडस्ट्री. ही सेज सर्विस इंडस्ट्री में तो टेंजिबल तो इन्वेस्टमेंट जाएगा. तो मैंने वही बात की कि एनीथिंग विच कैन नॉट. सो एज अ स्ट्रैटेजिस्ट आई वाज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल हाउएवर. सो आई सेड इफ यू वांट टू नो माय स्ट्रैटेजी टू रिवाइव Sumedha Mahajan, so Sumedha Mahajan has to be revived by creating a tangible industry. A product which can be quantified. A service cannot be quantified, so I will never be able. And I'm a young girl. People love to see men and old grey men coming in a suit, and because it presents the power. और वो मैं हूँ नहीं, वो मेरी पर्सनैलिटी नहीं है. तो बड़ा टाइम लग जाएगा अरविंद वहाँ पे एक ग्रे हेयर पहुँचने में. और अगर मार्केट को बेंड करना है तो मुझे फिटनेस इंडस्ट्री में मुझे मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहती हूँ. एंड दैट्स व्हेन गेव अ बर्थ टू ब्रेक फ्री. तो ब्रेक फ्री हमने इटली में गारमेंट्स के टेक्नोलॉजी के फैब्रिक्स के साथ हमने ऐसे बात करना शुरू की. एंड वहाँ से हमने ब्रेक फ्री का I bought an existence. So Break Free was majorly that time. I designed Break Free for an injury management system. So I said we will not make athletic wear कि एक्टिव सुंदर दिखना है. सुंदर दिखने के लिए ब्रेक फ्री में कोई जगह नहीं है. ब्रेक फ्री आपको इंजरीज में हेल्प करेगा. We went absolutely against what the garment industry during 2017-18 was doing. I said I'm going to design garments made only for spine, core, varicose, knee support. My garment is gonna be a tights which you're gonna be wearing, but it's gonna be a functional. It's gonna be a performance. You have pain, you can. If you have a pain, you can never achieve your dreams. So fitness industry जो है, जो हमारी athletic की industry है, you cannot exercise अगर आपके जोड़ों में दर्द है. अगर कमर दर्द है, आप कभी भी अचीव नहीं कर सकते अपना चलने का ड्रीम. एक्सरसाइज करने से पहले शरीर तंदुरुस्त होना चाहिए. खाने से भी ज़्यादा जोड़ों में दर्द है, कितना भी साफ खा लो आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो. सो फर्स्ट थिंग आई सेड टू माई सेल्फ इज, एंड इसका एक ही इलाज है, या तो आप एक्सरसाइज करेंगे या तो आप एक प्रॉपर कंप्रेशन वेयर पहनाया जाता है. तो आई रियलाइज कि कंप्रेशन के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं क्योंकि उसमें एक ब्लड सर्कुलेशन रुकता है. सो आई कीपिंग एवरीथिंग इन कंसिडरेशन. हमारा वेस्ट 7 इंचेस बिग है, मतलब लेडी का पेल्विक की गर्डल से लेके ऊपर के स्टमक के ब्रा लेवल उतना बड़ा गर्डल चाहिए एक स्पाइन को कंट्रोल करने के लिए. तो वी वर द फर्स्ट वंस एंड हमने ये डिज़ाइन किया था. उस टाइम पे भी बहुत इंडिया में ब्रांड्स आ रहे थे who were launching their own sportswear brands, and I'm very proud of them as well because somebody was taking about. However, we were still sticking with the technology. Technology में investments ज़्यादा होता है, so the margins we place are very small.
And that's where but however I'm so grateful for my customers. My customers were not based only in Metro. My customers are based in Raigad, Chhattisgarh, Manipur, Imphal. I remember there's still we have customers in Srinagar. We have customers in cities which I could not pronounce the names because they were athletes and there were people suffering with the body aches जिन्होंने कभी सोचा नहीं था. हमारे पास ऐसी कहानियाँ हैं ब्रेक फ्री में जिसमें लेडीज ने कहा कि मेरी वेरिको वेन्स है और मुझे कॉम्प्रेशन सॉक्स पहन के, मैं आपकी टाइट्स पहनती हूँ, किसी को पता भी नहीं कि मेरे वेरिको वेन्स हैं और मैंने मैराथॉन्स और अल्ट्रा मैराथॉन्स भागती हूँ. एंड सर्वाइकल के लिए हमने स्पोर्ट्स ब्रा डिज़ाइन की. सर्वाइकल के लिए लेडीज़ के पास इंडिया में मैक्सिमम लेडीज़ हैव, मोस्ट ऑफ द वुमेन हैव इस कंट्री में सर्वाइकल प्रॉब्लम बिकॉज वी वर्क इन द किचन. हम घर के काम करते हैं, डेस्क में काम करते हैं. सो ब्रेक फ्री डिज़ाइन द स्पोर्ट्स ब्रा डिज़ाइन, जैसे मैंने अब ये पहना है सर्वाइकल के लिए. सर्वाइकल के लिए हमेशा एक कॉलर पहनना पड़ता है, तो हमने डिज़ाइन किया कि आपका कॉलर को सपोर्ट मिलेगा, पीछे गिरेगा नहीं. तो दिखने में ऐसे शर्ट है लेकिन है सर्वाइकल के लिए. तो वी वर्कड ऑन डेवलपिंग द टेक्नोलॉजी. उसी दौरान 2020-21 में सर लॉकडाउन आ जाता है. मेरा बच्चा हुआ ही था, पहला बच्चा हुआ था. मेरी बिटिया तब was only 1.5 years, 2 years old, and I got pregnant again. And we were selling a lot that time overseas as well. And the thing suddenly, financial crisis came, everything got shut. And as I said, मैंने फंडिंग कहीं से नहीं लिया था. I was using my husband. We picked up the money from the market. 36% रिटर्न पे था. एंड फैमिलीज के से भी हम मांग नहीं सकते थे. एंड सो टाइम्स वर टफ. फिर मैंने आई बिकेम अ घोस्ट राइटर. I started writing small articles to run the basics again because staff वगैरह खर्चे तो निकालने, warehousing expenses and everything was going on. And उसी दौरान I was writing my 2 more books I wrote during that period to sell it to my publisher. My publishers were very happy that I'm writing again, and I wrote 2 books. And during that time, I used to be in Bombay. I used to work out of cafes in Bandra. And so I was pregnant. दूसरा बच्चा पेट में था. I remember people asking me not to keep the second one because तुम दोनों hardly घर चला रहे हो. So I used to go to cafes and I eat, and I could not take my daughter there because वहाँ पे ना crowds in Bandra, it's very nice, no problem, people are absolutely gorgeous, but those crowds are not healthy for a child to grow up. और इतना महंगा खाना होता था. I remember मुझे एक दिन इतनी भूख लगी थी, I was pregnant, and जेब में सिर्फ 500 रुपये थे. आई वाज सिटिंग इन वन ऑफ द वेरी पॉश इसलिए था क्योंकि मैं जिस एरिया में रहती हूँ तो वही 4-5 कैफेज ही आसपास के वो पास पड़ते हैं और चल के जा सकते हो. आई वाज सिटिंग देयर एंड वर्किंग आउट एंड आई वाज हंग्री एंड माय डॉटर आल्सो वाज हंग्री. बट एक सैंडविच ही 485 रुपीज़ का था जिसमें 2 स्लाइस आते हैं और वो सार्डो में आते हैं. एंड वो बहुत मुश्किल होती है सर. सार्डो बहुत हार्ड ब्रेड थी. एंड फॉर मेरे बच्चे को, मुझे भी भूख लगी थी. आई वाज प्रेग्नेंट बट दैट मच मनी आई हैड. So when I got an opportunity, so I used to go to this bookstore called Titleways in Bandra West, and I was writing my my son was my son was born on 21st March. In March 2021, and take your time. So then जब मैं उस कैफे में थी and it was and I really, and then I used to happen couple of times with me, you know, it was not that कि एक ही बार ऐसा हुआ, बड़ी बार ऐसा होता था. तो मैं हमेशा ढूंढती थी कोई सस्ती जगह कैफेज में होते. Then used to be in Tidal Waves and there used to be a cafe there. I used to go there. It was again same thing, but the food was so bad there. You know, जब आप पेरेंट बन जाते हो ना, आप 100 बार देखते हो कि आपका बच्चा क्या खा रहा है. एंड आउटसाइड फूड इज़ नॉट अलाउड. तो आप 10 बार सोचते हो, आप करते हो, विच आई डोंट थिंक आई वुड हैव डन व्हेन आई वाज यंग. आप कहीं से भी कोई फ़र्क नहीं. पर जब बच्चा बहुत 1.5-2 साल का होता है, बहुत छोटा होता है, और आप सोच समझ के और आप प्रेग्नेंट भी होते हो, और लॉकडाउन का समय था सर, टू मच थिंग्स वर गोइंग ऑन. तो मैं वहाँ जाती थी एंड आई वाज ऑलवेज टू वंडर कि भगवान कोई जगह है जहाँ बच्चे आते हो तो खाना अच्छा होना चाहिए. मतलब
मोस्ट ऑफ द ये फैंसी खाने अच्छे हैं, लेकिन एज अ पेरेंट अगर आप पूछो क्या आप ये घर में खाने बनाते हैं, फैंसी खाने नहीं ना बना पाते, क्योंकि वो आपको पता है वो बच्चे के लिए एडिबल नहीं है, वो बच्चे की सेहत के लिए नहीं है। तो आई यूज्ड टू ऑलवेज वंडर कि हे भगवान काम भी करना है और बच्चों के साथ भी जाना है। तो ऐसे ही करते करते ड्यूरिंग लॉकडाउन 22 व्हेन माय आफ्टर आई यूज्ड टू कीप इन माइंड, बट लॉकडाउन के बाद 2021 मार्च में माय सन वाज बॉर्न। अब बच्चा 2-3 महीने का था, मैं वापस फिर टाइटल बेस में जाती थी। आई यूज्ड टू गो देयर बिकॉज माय जिम माय kids used to be it's a very good place for children to hang out. It's books, and for a writer it's a paradise. Anyone who loves writing has to be there because the knowledge and the friends you get in the books nobody can compensate. तो वहाँ पे वहाँ के फादर थे, मैं पीछे एक मदर मैरी के प्रे करी थी, तो फादर थे, वो कह रहे थे कि हमें ना लैंडलॉर्ड चेंज करना है। तब तक लैंडलॉर्ड था, होते होते ही बोला कि हम शिफ्ट करना चाहते हैं, तो वी आर लुकिंग फॉर, अगर आपकी नज़र में हो तो आप लोगे करना। मैंने कहा सर मैं ढूंढ के आती। तो एक दिन फादर ने ऐसे कहा आप क्यों नहीं चलाते? मैंने कहा फादर मैं ओके मैं चला देती हूँ। मुझे नहीं पता उस समय कहाँ सरस्वती बैठ गई मुंह के अंदर। आई सेड येस टू दैट प्लेस एंड आई सेड फाइन आई डू इट, बट देन आई आस्क्ड फादर दैट फाइन आई मेक अ प्रेजेंटेशन एंड आई कम टू यू विद द ब्रेक फ्री व्हाट ब्रेक फ्री वांट्स टू डू। फिर जब मैं घर गई मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया। मैंने कहा, वो कह रहा होगा ये भगवान एक ऐसी औरत मिली है जब देखो धंधे में धंधे, एक को एक उंगली दी थी पूरी बाहें ले ली। एंड आई रिमेंबर लॉकडाउन का 21 था, माई हस्बैंड्स बैंक वॉज गेटिंग मर्ज, देयर वाज लॉट ऑफ प्रेशर, देयर वाज a lot of pressure in the house with the baby coming. Nobody was giving any shagun to me. Instead everybody was like कहाँ था ना करो बच्चे, एक ही बच्चा काफ़ी होता है, you have to see your financial। तो मुझे पता था किसी को भी बोलूँगी कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा और कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। It was not a wise decision. And I remember father ने कहा कि अगस्त में खाली हो रहा है तो आपको 2 महीने में स्टार्ट करना पड़ेगा, सुमेधा करोगे ना? तो मैंने कहा फादर आप बताओ इश्यूज क्या हैं? तो फादर टोल्ड मी कि देवर XYZ। ऐसे ठीक है, मेरे को आप बस ये खुली छूट दे दो कि आई आस्क्ड माय लैंडलॉर्ड्स टू जस्ट गिव मी अ फ्री हैंड to allow me to make it as I want, and I want bigger space than what the earlier guy was using. So so I said I want to make it as per me, place where and I remember everyone, I didn't tell anyone in my family. My family came to know I started this place when it was all done, and it started because उस समय I knew कि nobody is gonna appreciate, and I was not having enough strength to take opinions from people, especially when I'm just starting fresh again, restarting myself. So fortunately sir, garments के business था, break free का business था, income था। हमने ब्रेक फ्री के पैसे से, इस बार मैंने ब्रेक फ्री का ही जो इनकम था वो वापस हमने गारमेंट्स ने, बिजनेस ने पैसा हमने वहाँ से लगा के मैंने कैफ़े स्टार्ट किया। माई अचीवमेंट इन द कैफ़े वॉज दैट हमने डिसाइड किया था ये कैफ़े विल बी मेड फॉर पीपल हु कैन डू नॉट हैव टू कम टू अ प्लेस लाइक मी आई हैड गॉन थ्रू। मेरे पास ब्रेक फ्री में आने के लिए लोगों को अपनी जेब नहीं देखनी पड़ेगी, एंड विल गिव सच अ बिग क्वांटिटी कि 2 लोग खा सकते हैं। मेरे जैसा भूखा कोई ना जाए। दुकान में चढ़ने से पहले जेब, कार्ड, कपड़े ये ना देखें। I want to add something here because today you are sitting in front of me on my episode. I remember the first time I walked into your cafe. मैं खुद अपनी किताब लिख रहा था एंड मैं एक कैफ़े से दूसरे कैफ़े से तीसरे से 5 से 10 सारे बॉम्बे बैंड्रा के कैफ़ों में घूम घूम के और कहीं ना कहीं ज़्यादा आवाज़ थी, ये थी, प्रोग्रेस हो ही नहीं रहा था। उस टाइम पे फर्स्ट ड्राफ्ट था एंड फर्स्ट ड्राफ्ट इज़ ऑब्वियसली द मोस्ट टफेस्ट ड्राफ्ट टू एवर राइट। एंड चलते चलते आई सॉ कि आई एम लाइक एंड आई नो बिकॉज आपके पहले एक इंटरनेशनल चेन था, मैं वहाँ पे भी 1-2 बार बैठ के चला गया था, बट देन अगेन दैट वाइब वाज़न्ट देयर। मैंने सडनली देखा कि ये तो नाम बदल गया है, मे बी आई जस्ट प्रॉब्ली ट्राई एंड हैव अ कॉफ़ी और समथिंग, एंड आई केम एंड it was an open kitchen, and standing behind the kitchen making the coffee, making the food was you. Okay. And you asked me that
what can I get you? And I'm like, okay, I'll probably have an Americano, and that's the only thing that I have. But then I sat for about 2.5 hours, and I think it's the best that I have ever written on that particular day. And अगर शायद आपको याद नहीं होगा, बट मैं निकलने से पहले आपको ये बोल के गया था कि आपकी कैफ़े का वाइब इतना अच्छा है कि आई हैव रिटन प्रॉबेबली द बेस्ट आई हैव रिटन. एंड आपने मुझे जवाब दिया था उस टाइम पे सेइंग दैट कि इसीलिए मैंने इस जगह को शुरू किया है, एंड आपको यहाँ पे कभी भी क्रिएटिविटी की कमी नहीं महसूस होगी. एंड आई थिंक इट्स बीन फ्रॉम दैट डे टिल टुडे, इट्स बीन क्लोज टू 1.5 2 years that I am probably one of your regulars. Thank you. In that cafe. So I completely understand. And of course, in terms of your quantity, मैंने जब पहली बार कुछ ऑर्डर किया था तो 2 जन का खाना आ गया था, और तभी मैं नया डाइट पे आया था. तो and I'm someone who doesn't like to waste food, so I had to finish all that thing. और आज मैं जब भी आता हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ कि मुझे उतना मत देना, मुझे बस हाफ दे. Yeah. So, and I think that comes from your values, Sumedha. What we've just heard and what we've just basically heard from you, I think it's very important. और ये बहुत कम देखने को मिलता है, especially in entrepreneurs and founders, that how you bring your values into your business. सर मेरी खुद की स्पाइन टूटी हुई है. I have a L4, L5 and SI joint dislocation. So when I wanted to have a kid in 2015 and 14 में पता चला था कि सिचुएशन मेरी स्पाइन की बहुत बुरी है, तो डॉक्टर्स ने कहा था बच्चा टिकेगा नहीं. एंड तब मुझे ब्रेसिंग पहनाई जाती थी स्पाइन में. मैंने आई वाज टेकिंग लॉट ऑफ इंजेक्शंस इन माय स्पाइन, पेन किलर स्पाइन्स के. एंड तब मेरे को हमेशा मेरे रियलाइज़ हुआ था कि स्पाइन कोई भी चीज़ अगर आपको तब मैंने ब्रेक फ्री के गारमेंट्स में स्पाइन डाला था. मुझे हमेशा ये लगता था जो चीज़ आप नहीं ना पहन सकते, जो चीज़ आप खा नहीं ना सकते, उसको कभी बेच, वो बरकत नहीं देता है. ज़िंदगी में सर बड़े लोग हर चीज़ एवरीथिंग इज, मेरे केस में क्या हुआ, मैंने आपको कहा, मैंने भगवान से यही कहा था कि आई एम अ गुड पर्सन, ही इज़ मेड मी फॉर अ गुड डूइंग गुड. तो जब भी खाना, जब मैं कैफ़े में जाती हूँ, ऐसे लोग कई बार पूछते कि आपके पास स्टाफ नहीं है इसलिए आप काम करो. मैंने कहा नहीं भाई, स्टाफ है, मुझे शौक है. मैंने रोटी मेन्यू मैंने बनाया, मेरे को अच्छा लगता है अपनी चटनी ऐसे सुबह सुबह बना के रखने का, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया. हमारे पास 15 से 20 स्टाफ है कैफ़े में. उसी तरह गारमेंट्स में भी लोग सोचते हैं कि अरे तुम डिज़ाइन करो, तेरे पास बंदे नहीं. बंदे की बात नहीं है सर. जब हम अब किसी भी रोटी ना सर पंजाब में कही जाती है कार सेवा का काम होता है. हमारे पंजाब में कहा जाता है कार सेवा है. खाना जो है ना लोगों को सेवा भाव से देना चाहिए. तो ऊपर वाला ज़रूरी नहीं होता. एवरी ब्लेसिंग कम्स इन द फॉर्म ऑफ मनी, इट कम्स इन मेनी डिफरेंट वेज. और मेरे कर्म मेरे बच्चे का, मैं हर बार कहती हूँ, मैं जो कर रही हूँ ना, मेरे बच्चों ने कल को मेरे कर्म उनको लगने हैं. कल मेरे बच्चों के साथ अच्छा हो भगवान, इसलिए मैं अच्छा कर रही हूँ. तू चार दुख मुझे दे, बच्चों की किस्मत अच्छी रखना. तो when you're a mother ना, you think differently. I always tell, I said, when you're an entrepreneur is a mother, any middle class mother with a small kids, उसकी भावना खाने में अलग होगी, क्योंकि उसको पता है कि मेरा ये रोटी है ना, इसकी जो बरकत है मेरे बच्चे भी खाएंगे, मेरा हस्बैंड को नहीं जा रहा है, मेरी जेब में नहीं आ रहा. और आपके पास जो आपके एम्प्लॉयज़ आते हैं ना, आप उनकी भावनाओं से अटैच्ड होते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनके जैसे, अब कितने स्टाफ है जिनके बच्चे होते हैं या उनकी वाइफ्स आती हैं. आई हैव सो मेनी बिकॉज ऑफ माई गारमेंट्स ऑल्सो. अब पहले मेरे पास, मैं खुद एम्प्लॉय थी, अब बहुत सारे लोग मेरे लिए काम करते, ब्रेक फ्री में काम घर चलते हैं. हर बार एक शॉपिंग करने से पहले कई बार हम एक्स्ट्रा इनकम, कहीं पता नहीं किसको कब उधार की जरूरत पड़ जाए. So today, after this journey that you've shared with me and the audience, what is Sumedha Mahajan worth? What is the valuation, as we can call it today? Yeah, so I think emotionally, so I'm super fun, I guess, and I'm trustworthy. I think today we are stronger than ever. As I said, break free
Fortunately, we have is a parent company. We are no more. We don't have debts anymore. That's the most powerful statement I can make as a business owner. We are a debt-free brand, and a brand which is now having not a one but umbrella itself. We had break-free garments, sportswear brand, which we are now selling on our website, and also we are selling on Myntra, which is a very big platform, and we are doing very well there. Now Break Free has grown into become a cafe which is now 4.5 years old, and it's very famous, and we do a lot of fitness food sell them. We do a lot of events, and also now Break Free has its events as well. Break Free events where we do a lot of sports sponsorship events. We do outdoor catering events. We do inside the cafe we have a spacing of 50 to 60 people gathering, and outside space maybe can easily accommodate 75 to 100 people, which is a very big achievement in Bombay. बॉम्बे में इतने बड़े कैफे नहीं है कि जहाँ पे 60-70 लोग इकट्ठे बिठा सको, उसके लिए रेस्टोरेंट कहा जाता है, पर एक कैफे में अगर इतने लोग बैठ सकते हैं तो that's an achievement itself, and we do a lot of events for that. So now overall I think in today's parameter, if we're talking about valuation, the biggest achievement of the Break Free brand is कि Break Free is self-sufficient. Break Free creates its own revenue and it reinvests its revenue and creates more business for itself. We are not taken a loan from everybody. Today sir, valuation में बड़ी बार जो लोग अपनी किताबें चौड़ी करके दिखाते हैं वो डेट नहीं बताते हैं. मेरे पास कोई एंजल इन्वेस्टर नहीं है, ना ही मेरे पास कोई माई बाप है, ना ही मैंने कहीं से पैसा लिए बैंक से. ब्रेक फ्री एकदम मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है, ब्रेक फ्री की वैल्यूएशन वी आर डेट फ्री एंड वी आर एबल टू जनरेट अ रेवेन्यू इनफ to create and build a bigger brand from ourselves, and that's very powerful as for me right now. That's a biggest success. पैसे लेके तो कोई भी बड़ा बन सकता है सर, अपनी जेब के पैसे से एक और के बाद एक और बिजनेस खड़ा करना एक बहुत बड़ी वैल्यूएशन और एक पावरफुल प्रेजेंस है. वी आर, और अभी भी अगर हमें कुछ नया स्टार्ट करो हमें टेंशन नहीं होता है कि है, and my staff can depend upon us. And we are still hiring, and that's amazing. The valuation I can talk about. That's amazing. That's amazing, and I think the credit must go to you, because I believe that behind every institution, if there is a founder, if there is a strong founder who is running the business from an ethical set of values, I feel that is something which never basically works against you. So, and I've seen this with you, and I've seen this with many other business people. So Sumedha, before I round off and before we end this particular episode, what do you feel that you could probably, what you could have probably heard as a 22-year-old, what is that one piece of advice where you feel that if someone would have given you, would have probably fast-tracked your growth, and something that you would want to let our audience benefit from? काश किसी ने, everybody would have told me the truth. जिंदगी का सबसे बड़ा सच मुझे सिखा दिया होता, वो ये था, नसीब और वक्त से कोई नहीं भाग सकता. जो नहीं ना लिखा, तुम कितने भी अच्छे बन जाओ या बुरा हो जाओ, वो नहीं मिलेगा. और जो लिखा है, तुम कितने भी मर्डर्स कर लो तुम कितना भी क्राइम कर लो, वो तब भी तुम्हें मिल के रहेगा. अगर नसीब में लिखा है, वो अपने आप तुम्हारे पास अपने आप उसी वक्त पे आएगा. खेल नसीब और वक्त का है, बाकी तो सिर्फ चेस के मोरे हैं. बाकी इफ दैट ट्रूथ वाज टोल्ड टू मी, आई थिंक आई वुड हैव नॉट बिकम इम्पेशेंट एंड आई वुड हैव बीन मच मोर काम. हाउएवर यू हैव टू वर्क हार्ड, बिकॉज कर्मों का घड़ा वक्त पे डिपेंड नहीं करता और नसीब पे नहीं करता. कर्म हम अपने लिए करते हैं और अपने आसपास के लोगों के परिवार के लिए करते हैं. कर्म अच्छा करना है, लेकिन ये याद रखना, वक्त और नसीब में लिखा है तो ही आएगा. बट यू मस्ट कीप डूइंग गुड, बिकॉज बड़ी चीज़ें कर्म बदल देती हैं. अच्छे कर्म पता नहीं कहाँ से लग जाते हैं, सब बड़ी दुआएं लग जाती हैं. अच्छे कर्म और कर्मों वालों को ही दुआएं लगती हैं. मैं आज जहाँ खड़ी हूँ, इस मुकाम पे भी खड़ी हूँ, इफ़ आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू यू, ये मेरे कर्म थे. उस दिन मैंने आपको कॉफ़ी बना के पिलाई, आप मेरे ने मुझे यहाँ बुलाया. उस समय तो आपको सिर्फ वो 200 200 रुपीज़ की लगी होगी, लेकिन वो मेरा कर्म था.
जो मुझे यहाँ तक लेके आया। वो वक्त और नसीब का खेल नहीं था। वक्त और नसीब पता होता उसका है तो शायद मैं ज़्यादा पेशेंट होती। अब मैं बहुत पेशेंट हूँ, मुझे फर्क नहीं का नहीं लिखा कोई गाल नहीं, नेक्स्ट देखते, लेट्स डू वन गुड जॉब टुडे। सो एवरी टाइम आई डोंट अचीव समथिंग, जैसे मेरा दिल करता है मैं बाकी कैफेज को देखती हूँ जिनके बाहर लाइनें लगी होती हैं, कई बार कहते हैं मैं भी लाइन लगाऊँ, मेरे भी बाहर लगी हो, फिर मैंने डिसाइड किया चलो ये तो नहीं है, एक काम करते हैं, लेट्स डू वन गुड थिंग एंड पीपल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग एंड दैट डे आई डू समथिंग एक्स्ट्रा माइल एंड देन आई स्टार्ट ऐसे लुक I'm having so many, so you start becoming doing good karmas. So That's amazing, and it's always fun chatting with you. Thank you. It's because very rarely do we find people in today's world who live from a very emotional space, and you are one person that I feel that thank you. lives from that emotional space, and it's always fun chatting with you. Thank you so much for sharing your story. Thank you so much for sharing your journey with us. And I'd like to tell my people is that we may face a lot of setbacks, a lot of failures. We may feel that things are probably not unfolding for us at the time that we want. But the only thing that is there in our control, and the only thing that was there in Sumeda's control, was she showed up every day. So thank you so much, and it's lovely to speak to you, and I hope to visit your cafe more and more often. Thank you, sir. Thank you so much.